बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिन्त शहजाद। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 8 का यूनिट नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज़ फेयरनेस इन विजडम। फेयरनेस इन विजडम नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसी कहानी होगी जिसमें किसी न किसी की विजडम यानी कि दानिश्वरी, अक्लमंदी के बारे में बात की गई होगी। और फेयरनेस का मतलब आपके मामलात को इंसाफ से देखना यानी कि इंसाफ करना। फेयरनेस का मतलब होता है बराबरी करना, तो इसमें कुछ ऐसा किया गया होगा। लेकिन अब ये कहानी क्या है तो देखते हैं इसको और पढ़ते हैं। Already close to the place, they stopped in a small village. A man of a very poor appearance received them and made sure they were well attended. Meanwhile, another man of a similar poor appearance threw himself to the ground in front of them, begging. A third, who seems to be a rich man, sent two of his servants to tend to the prince and the wise man and provided them with what they needed. The prince so enjoyed his time there that on his departure he presented the villagers with all the gold which the maximum had given him. Hearing this, the poor man, the beggar and the rich man all ran up to the prince, each one asking for the share. "How will you share it out?" asked the wise man. "The three are very different and looks like the one who gives away more gold is the rich man." The prince hesitated. The wise man was right. The rich man had to pay his servant. He was the one who had spent most gold and he had looked after them well. However, the prince was starting to develop a sense of justice and he perceived that his first conclusion on this matter was not sufficient. Finally, the prince took his gold and made three piles, one very big, another medium size and the last one small. In that order he gave them to the poor man, the rich man and the beggar. Saying his goodbyes, the prince set off with his wise men, heading back to the palace. They walked in a silence, and when they reached the palace gate, the wise men asked, "Tell me something, young prince. What does justice mean to you?" "I think justice lies in sharing, taking into account necessities but also the merits of the individual." "Is this the reason you gave the smallest pile to the troublemaking beggar?" asked the wise man contentedly. "Yes, that's why. I gave them the big pile to the poor man who looked after us so well. In him I saw both necessity and merit, since he helped us all he could despite being poor. The medium pile was for the rich man. Even though he attended to us wonderfully, he really did not have much need for more gold. The small pile I gave to the bothersome beggar because he did nothing worthy of reward. However, given his great need, it was also right to give him something to live on," explained the prince. "I think you will be a fine king, Prince Lapio," concluding the wise man, embracing the prince. And he was right. From then on, the prince became known throughout the kingdom for his fairness and wisdom. Some year later, his ascent to throne was celebrated by all. And so it was that King Lapio became remembered as the best leader the kingdom had ever had. ट्रांसलेशन देखने से पहले हम देखेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। डिस्प्यूट, एक आर्ग्यूमेंट, झगड़ा। शिपरैक, ठीक है, आज जब आपकी कश्ती को कोई नुकसान हो जाए समंदर में। बर्स्ट, तोड़ना। आइलैंड, जजीरा। प्रोपोर्शंस यानी कि शेयर करके उसके हिस्से करना। होर्ड, कलेक्शन ऑफ मनी, फूड या कोई भी कीमती चीज़ों की जो कलेक्शन होती है। लीप्ड, ठीक है, जंप करना। स्टार्व्ड, फाका करना। डे ब्रेक यानी कि सुबह का दिन जो होता है जब सूरज चढ़ रहा होता है। गारलैंडेड, किसी चीज़ को डेकोरेट करना या किसी इंसान को डेकोरेट करना, उसको सजाना। पाइल्स, ऐसे किसी चीज़ के हीप्स लगाना। मेरिट्स, किसी की खूबियाँ। ट्रबल मेकिंग, जो बेसिकली किसी भी कह लें कि प्रॉब्लम का, किसी भी मसले की वजह बनती है। कंटेंटली सेटिस्फाइड। बॉदरसम, किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट करना, तंग करना। एक्सेंट, ठीक है, एक्सेंट बेसिकली आपके पास होगा मतलब जब उसको वो चीज़ मिलती है। नाउ अब देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। एक बार एक बहुत ही गैर मुनसिफाना शहज़ादा था। हालांकि वो कामिल शहज़ादे की तरह लगता था, खूबसूरत भी था, ज़हीन भी था। शहज़ादा लैपियो ने यह तासुर दिया हुआ था कि किसी ने उसे कभी भी इंसाफ की नौयत नहीं बताई थी और ना ही सिखाई थी। अगर दो आदमी किसी झगड़े पर इसके पास आते तो और उसे मामला हल करने की तवक्को रखते तो वो उसके हक़ में फ़ैसला करता
था जो दोनों में से ज़्यादा दिलकश या खूबसूरत लगता या जिसके पास अच्छी तलवार होती। इन सब से तंग आकर लैपियो के वालिद बादशाह ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को इंसाफ के बारे में सिखाने के लिए एक अकल आदमी से मुलाकात करेंगे। बादशाह ने कहा, मेरे अक्लमंद दोस्त, बराह करम इसे ले जाओ और जब तक ये आदिल और मुनसिफाना बादशाह बनने के लिए तैयार ना हो इसे ना लाना। अक्लमंद आदमी शहजादे के साथ कश्ती के जरिए रवाना हुआ, लेकिन वो एक जहाज़ के टूटने का शिकार हुए और एक सेराई जजीरे पर वाहिद जिंदा बचने वाले थे। वहाँ उनके पास ना खाने को कुछ था ना पानी। इब्तदाई चंद दिनों तक प्रिंस लैपियो एक अजीम शिकारी कुछ मछलियाँ पकड़ने में कामयाब रहा। बूढ़े अक्लमंद ने इससे मछलियाँ बांटने को कहा तो नौजवान शहजादे ने इनकार कर दिया। ताहम कुछ दिनों के बाद शहजादे की माहीगिरी कम कामयाब रही, जबकि बूढ़ा आदमी तकरीबन हर रोज़ परिंदे पकड़ रहा था जैसा कि प्रिंस ने किया था। अक्लमंद आदमी ने अपने शिकार बांटने से इनकार कर दिया। लैपियो दिन ब दिन लागर होता गया, यहाँ तक कि वो आखिरकार रोने लगा और अक्लमंदी से इल्तिजा की कि वो उसे भूखा मरने से बचाने के लिए अपना कुछ खाना बांटे। मैं आपके साथ इनका इश्तराक सिर्फ तब करूँगा, अक्लमंद आदमी ने कहा, अगर आप मुझे दिखाते हैं कि आपने अपना सबक सीख लिया। शहजादे ने यह जानकर अक्लमंद आदमी से कहा कि इंसाफ, हमारे पास जो कुछ है उसे बराबर बांटने पर मुश्तमिल है। दानिशमंद आदमी ने उसे मुबारकबाद दी और उसे कुछ खाना दिया। उसी दोपहर को एक जहाज़ ने इन्हें जजीरे से बचाया। वापसी के सफ़र में वो एक पहाड़ के पास कुछ देर रुके, जहाँ एक शख्स ने शहजादे को पहचान लिया और उससे कहा, मैं मैक्सिमम कबीले का सरदार हूँ, बराह करम मेरी मदद करें, हमें पड़ोसी कबीले के साथ परेशानी हो रही है। मिनिमम, हम दोनों गोश्त और सब्जियाँ बांटते हैं और हम इस बात पर बहस करते हैं कि इन्हें कैसे बांटना है। शहजादे ने जवाब दिया, बहुत आसान हाल है, शुमार करो कि तुम लोग कितने हो और बराबर तनासुब में खाना बांट लो। और इस तरह उसने पहले ही जो सीखा था उसका अच्छा इस्तेमाल कर लिया था। लेकिन ये कहने के बाद ही पहाड़ से हज़ार चीखों पुकार की आवाज़ आई। नाराज़ मर्दों का एक हजूम भागता हुआ आया और चीफ की क़यादत में जिसने सवाल किया था वो प्रिंस लैपियो पर छलांग लगाकर उसे कैदी बनाकर ले गए। लैपियो ये बात बिल्कुल समझ नहीं सका। उन्होंने उसे जेल की कोठरी में डाल दिया और उससे कहा, तुमने हमारे लोगों को मारने की कोशिश की है, अगर तुमने कल सुबह तक ये मसला हल नहीं किया तुम हमेशा के लिए जेल में रहोगे। उन्होंने शहजादे के साथ ऐसा किया था क्योंकि मिनिमम छोटे थे और तादाद में बहुत ज़्यादा थे, जबकि मैक्सिमम जो थे वो बड़े थे और तादाद में कम थे। चुनाचा शहजादा ने जो हल तजवीज़ किया वो लोगों को भूखा मार देता था। शहजादा सूरत हाल को समझ गया और सारी रात सोच कर गुजार दी। अगली सुबह जब उन्होंने उससे हल तलब किया तो उसने कहा, खाना बराबर ना बांटे, इसके बजाय हर शख्स को कितना देना है उसके मुताबिक बांटे, लोगों को उनके साइज़ के मुताबिक खाना दें। मैक्सिमम लोगों को जवाब इतना पसंद आया कि उन्होंने शहजादे को रिहा कर दिया। एक अजीम दावत मुनक्कद की, इसे सोने के और हीरे के जेवरात पहनाए और इसको और दानिशमंद आदमी को महफूज सफ़र की दावत दी। जब वो साथ चल रहे थे प्रिंस ने तबसरा किया, मैंने कुछ नया सीखा है, सबको एक जैसा देना मुनासिब नहीं, मुनसिफाना बात शेयर करना है, लेकिन आप लोगों को उनकी मुख्तलिफ ज़रूरियात के मुताबिक देना चाहिए। दानिशमंद इत्मीनान से मुस्कुराया। महल के करीब ही वो एक छोटे से गांव में रुके। एक इंतहाई गरीब हुलिये के शख्स ने उनका इस्तकबाल किया और इस बात को यकीनी बनाया कि वो अच्छी तरह से रहें। इसी दौरान एक आदमी जो इस तरह के गरीब हुलिये का था उसने भीख मांगते हुए अपने आप को उनके सामने गिरा दिया। तीसरे ने, जो एक अमीर आदमी मालूम होता था, अपने 2 नौकरों को शहजादा और दानिशमंद की खिदमत के लिए भेजा, इनको ज़रूरत की चीज़ें फराहम की। शहजादे ने वहाँ अपने क़याम का इतना मज़ा किया कि रवानगी के वक्त उसने गाँव वालों को वो तमाम सोना पेश किया जो मैक्सिमम लोगों ने उसे दिया था। ये सुनकर गरीब, भिखारी और अमीर सब शहजादे के पास भागे, हर एक अपना हिस्सा मांग रहा था। आप इसे कैसे बांटेंगे? दानिश्वर आदमी ने पूछा। तीनों में बहुत फ़र्क है और ऐसा लगता है जो ज़्यादा सोना देता है वही अमीर आदमी है। शहजादा हिचकिचाया। अक्लमंद ने ठीक कहा था, अमीर आदमी को अपने नौकरों की दारी करना पड़ती थी और उसने सबसे ज़्यादा सोना खर्च किया था। उसने अच्छी तरह की देखभाल भी की थी। उसने महसूस किया कि इस मामले पर इसका पहला नतीजा काफ़ी नहीं। आखिरकार शहजादे ने अपना सोना लिया, 3 ढेर बनाए, एक बहुत बड़ा, दूसरा दरमियाने साइज़ का और आखिरी छोटा। इस तरतीब में उसने उन्हें
غریب آدمی, امیر اور بھکاری کو دیا. الوداع کہہ کر شہزادہ اور عقل مند آدمی واپس محل کی طرف روانہ ہوئے. وہ خاموشی سے چلتے رہے. جب وہ محل کے دروازے پر پہنچے تو عقل مند آدمی نے پوچھا, نوجوان شہزادے مجھے کچھ بتاؤ, آپ کے نزدیک انصاف کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں انصاف بانٹنے میں مضمر ہے, ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلکہ فرد کی خوبیوں کو بھی. کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے سب سے چھوٹا ڈھیر پریشان کرنے والے بھکاری کو دیا؟ عقل مند نے اطمینان سے پوچھا, ہاں, اس لیے میں نے بڑا ڈھیر اس غریب آدمی کو دیا جس نے ہماری اچھی طرح دیکھ بھال کی. میں نے اس میں ضرورت اور قابلیت دونوں دیکھی, کیونکہ اس نے غریب ہونے کے باوجود ہماری ہر ممکن مدد کی. درمیانے درجے کا ڈھیر امیر آدمی کے لیے تھا. اگرچہ اس نے حیرت انگیز طور پر ہماری دیکھ بھال کی, اسے واقعی زیادہ سونے کی ضرورت نہیں تھی. وہ چھوٹا سا ڈھیر جو میں نے پریشان کن بھکاری کو دیا کیونکہ اس نے اجر کے لائق کچھ نہیں کیا تھا, تاہم اس کی بڑی ضرورت کے پیش نظر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ دینا بھی درست تھا. شہزادے نے وضاحت کی, مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک اچھے بادشاہ بنیں گے پرنس لیپیو. عقل مند آدمی نے شہزادے کو گلے لگاتے ہوئے کہا, اور وہ صحیح تھا. تب سے شہزادہ اپنی انصاف پسندی اور دانش مندی کے لیے پوری مملکت میں مشہور ہو گیا. کچھ سال بعد اس کے تخت پر چڑھنے پر سب نے جشن منایا اور یوں یہ ہوا کہ بادشاہ لیپیو کو بادشاہی کے بہترین رہنما کے طور پر یاد کیا جانے لگا. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا. ایک نئے ویڈیو لیسن کے ساتھ ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.